हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगल विद बास्केट का रिमेनिंग पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आगल विद बास्केट क्लास 12th का इंग्लिश प्रोज का लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. राइटर विलियम सी डगलस कहते हैं कि एक स्टेशन में उनका जो बातचीत करने का रूटीन था वो इंटरप्टेड, वो बाधित हुआ। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती थी वो प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते, प्लेटफॉर्म पर टहलने लगते और किसी ऐसे शख्स से बातचीत करना शुरू करते जो अंग्रेजी समझ सकता था, बोल सकता था। लेकिन उन्होंने बताया कि एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का कार्यक्रम बाधित हुआ। As soon as I alighted, जैसे ही मैं नीचे उतरा, a group of young children gathered around me, एक छोटे बच्चों का समूह ने मुझे घेर लिया। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple design and pattern. वे लोग बास्केट्स बेच रहे थे जो हाथ से बनी हुई थी। वो बास्केट सरपत से बनी हुई थी और उस बास्केट पर सामान्य से डिजाइन वगैरह बनाया गया था। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे लोग अपने बास्केट्स को, टोकरियों को ऊपर हाथ में उठाए हुए पकड़े थे। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। मैं जानता तो नहीं था वे लोग कह क्या रहे हैं, लेकिन बिना किसी गलती किए मैं उनकी भावनाएं समझ रहा था। Writer told us that as he was an English person, he don't know about Hindi, and those refugee children were selling their baskets and shouting the words in Hindi. Writer asserted the fact that although he did not know what they were saying, but without any doubt he could understand their desires, their feelings. These were refugee children. These were refugee children. When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. In these lines, William C. Douglas is trying to introduce those young children who were selling baskets. Author is telling us that those group of children were refugee children. Refugee children, it means they got here shelter. They were not permanent citizen of India. When partition between India and Pakistan was decreed, when after independence India and Pakistan was divided,
then hundreds of thousands of people. 100,000, it means hundreds of thousands, it means lakhs of people. 100,000 equal to 1 lakh, and hundreds of thousands, it means lakhs of people pulled up their roots and changed their residence. Numberless people, lakhs of people changed their residence after the division of India and Pakistan. And 9 million people left Pakistan and came to India. 1 million equal to 10 lakh. And William C. Douglas mentioned here 9 million. It means 90 lakh. People left Pakistan and came to India as refugees, driven by the fear of religious fanaticism. Writer gives us reason in this line that why they came India, why they left Pakistan. This was the main reason, that they were afraid with their religious fanaticism. Their religious fanaticism, it means religious madness. They were afraid the Islamic religious madness. That's why they left Pakistan. They thought lest Pakistani government or Pakistani government forced him to be converted into Islam. Otherwise, they will be killed. That's why they left Pakistan and came India. They were poor people to start. They were already poor people. They were poorer as they began their long trek. And although they were already poor people, yet they became poorer as they began their long trek. It means when they started their journey from Pakistan to India, they became poorer, as for all they could carry was a bit of food and a few belongings. And the reason was that they became poorer as they could not carry all their belongings with them. They could carry only necessary belongings and some food with them. They left their residence, their fields, their immovable estate in park. Soon they were out of food, and immediately they faced the problem of starvation. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of the hunger and died where they fell. Writer tells us that a few days after they started their journey, after some days from their journey, the refugees began to fall on the wayside, on the path. Why they fell on the wayside? Because they were facing the problem of hunger, they were facing the problem of starvation, they had nothing to eat. It means their
remained no any edibles so that they might satisfy their belly. That's why they became weak, and by the weakness of hunger, they fell on the roadside, and as soon as they fell, they died. इस पैसेज में राइटर उन बच्चों का इंट्रोडक्शन दे रहा है जिन बच्चों ने उसे घेर लिया था और जो बास्केट्स बेच रहे थे। बताया वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, वे शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडेशन हुआ तो सैकड़ों हजार लोग यानी कि लाखों लोगों ने अपना आवास बदल दिया और डिवाइडेशन के बाद लगभग 90 लाख पीपल, लगभग 1 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आए। ड्रिवन बाय द फेयर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक उन्मत्तता या धार्मिक पागलपन के डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान लोगों ने अपने लिए पाकिस्तान रिजर्व करा लिया है और यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को वो बाध्य करें कि आप भी इस्लाम अपनाइए, इस्लाम कबूल कीजिए, और अगर इस्लाम नहीं कबूल करते हैं तो वो उन्हें कहीं मार न दे। इसी पागलपन के डर से यही धार्मिक पागलपन उन्हें सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान के मुसलमान हमें बलात् इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य करे और ना करें तो ये कहीं मार ना दे। इस धार्मिक पागलपन के डर से वे भारत चले आए थे। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे लोग पहले से ही गरीब थे। देवर पुअर एज द बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, लेकिन जैसे ही वो अपनी लंबी यात्रा शुरू किए वो और भी गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि वे अपने साथ केवल बहुत ही कम भोजन और बहुत ही कम जरूरत की सामग्री ला सके थे। खेत, मकान और भी जो दूसरी अचल संपत्ति थी वो वहीं पर छूट गई थी। बहुत ही कम अपने साथ एडिबल्स, खाने पीने का की वस्तुएं और जरूरत की सामग्री लाए थे क्योंकि उन्हें पैदल ही यात्रा करना था। सोन देवर आउट ऑफ फूड, और बहुत ही शीघ्र वे लोग भूखों मरने लगे। A few days after they started, अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही वे भूखों मरने लगे। And they began to fall by the wayside, और वे रास्ते के किनारे गिरने लगे। वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, और जहाँ पर वो गिरते वहीं पर वे दम तोड़ देते। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees, और ये बच्चे जो बास्केट्स बेच रहे थे इन्हीं रिफ्यूजीज के सन्स व डॉटर्स थे, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र व पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, उनके संबंधी शहरों पर इकट्ठे हुए। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें खोल लिया, बनाया। एंड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, और बहुत सामान्य सी वस्तुओं का निर्माण करने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी, और ऐसे स्थानों पर रहने का प्रयास किया जो स्थान ऑलरेडी भीड़ भाड़ युक्त थे। They lived in cloth and grass sheds that lined in the street. वे लोग कपड़े व घास के छायादार स्थान बनाए गलियों के रास्तों के किनारे किनारे लाइन से। And the patients among these children,
पेशेंट्स दिस रिफ्यूजीज, और इन शरणार्थियों में जो पेशेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, हैड बीन अकस्टम्ड, वे अभ्यस्त हो गए थे, टू लिटिल ऑल दियर लाइव्स, बहुत ही कम से जीवन जीने के वे लोग अभ्यस्त हो गए थे। The average unskilled laborers make 30 cents a day or less than $2 a week. एक अनस्किल्ड लेबरर जिसमें किसी कला का विकास नहीं हुआ है, जो केवल शारीरिक श्रम कर सकते हैं, शारीरिक काम कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का खोदना है, बालू का ढोना है, ईंट को इधर से उधर ले जाना है, ऐसा ही केवल फिजिकल वर्क जो कर सकते हैं, ट्रक से बोरे को लादना है या उतारना है, ऐसे ही अनस्किल्ड लेबरर के एक दिन की औसत आमदनी लगभग 30 सेंट्स थी, या फिर कहें सप्ताह में $2 से ज़्यादा नहीं थी। देयर इज़ 1 मील अ डे, वे लोग दिन में एक बार भोजन लेते थे। एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बोल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और उनके भोजन में शामिल था एक प्याज, कुछ रोटियां, एक कटोरा दाल दूध के साथ, और शायद थोड़ा सा कभी कभी बकरी के दूध का बना हुआ चीज़, पनीर। नो मीट, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, और उनके भोजन में कोई चाय, कॉफ़ी, फल, मिठाइयाँ, मांस ये सम्मिलित नहीं था। उसका बेस कारण यही है, उनकी आमदनी बेहद कम थी। $100 a year is not $2 a week. वर्ष में $1 वो सप्ताह में $2 से ज़्यादा नहीं होता। Yet, even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. फिर भी इतनी छोटी सी रकम भी कमाने में बहुत कठिनता होती थी उन टोकरियों को गरीब लोगों के बीच में बेचकर कमाने से। उन टोकरियों को गरीब लोगों के बीच में बेचकर कमाने में इतना भी कमाने में दिक्कत होती थी, इसलिए नहीं इतना कमाया जा सकता था। That no doubt is the reason these children descended on me like locusts. निस्संदेह यही कारण था कि ये बच्चे मुझ में टिड्डियों की तरह टूट पड़े। टिड्डियों के विषय में कहा जाता है ये कभी अकेले नहीं जाती हैं, ये ग्रुप में जाती हैं, और यही कारण है उन शरणार्थी बच्चों का ग्रुप जो बास्केट बेच रहा था वो मुझ पर टिड्डियों की तरह एक साथ टूट पड़े। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं एक अमेरिकन निस्संदेह उनके निगाह में बहुत ही आकर्षक ग्राहक था। जो भी आज तक ग्राहक उन्होंने देखे, उन ग्राहकों की अपेक्षा मैं बहुत ही आकर्षक था। उन्हें लगता था मैं काफ़ी कुछ ले सकता हूँ। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज। मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी बास्केट खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी। और मैंने दूसरी फ्रूट बास्केट खरीदा जो कि वेस्ट पेपर से बनी हुई बास्केट थी, खूबसूरत थी, उसको मैंने $1 में खरीदा। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सिलाई का सामान रखने वाली प्यारी सी बास्केट भी मैंने खरीदा $1 में। फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 a piece। मैंने 1-2 आनों में कुछ फैंस भी खरीद लिया, हैंड फैन। माई आर्म वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट नॉट 50 cents। राइटर कहते हैं कि उसके दोनों हाथ फुल हो गए और उन्होंने 50 सेंट से ज़्यादा खर्च भी नहीं किया। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स
I was